یہ زیادہ نقصانات ہیں. اب بیٹھے بیٹھے آپ گوگل پہ ٹائپ کرو قربانی کتنے دن ہے تو وہ 4 آپشن آپ کو بتائے گا اور آپ کی بھنگری آؤٹ ہو جائے گی. مطلب آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دے گا. یہ بامبے کی بات بولا میں نے. وہ دے گا 1 دن کی قربانی حدیث بخاری سے. وہ دے گا 1 دن کی قربانی حدیث بخاری سے. وہ دے گا 3 دن کی قربانی حدیث بخاری سے. وہ دے گا 4 دن کی قربانی جو گوگل کے مقلد غیر مقلد کرتے ہیں 4 دن تو وہ اس کی بھی حدیث کو بخاری سے لا کر دے گا. اب ایک عام آدمی پریشان ہوتا ہے کہ میں کس کی بات مانوں. اللہ کے رسول کے تینوں اقوال ہے, اس میں سے صحیح قول کون سا ہے؟ کبھی نبی ایسا کہتے ہیں, کبھی نبی ایسا کہتے ہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ میں حدیثوں کو چھوڑ کر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ایسی کتاب پر ایمان لاؤں جس میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی قرآن کریم. تو بزرگوں سے ہاتھ دھو دیتا ہے, اسلاف سے ہاتھ دھو دیتا ہے, حتیٰ کہ وہ حدیثوں سے ہاتھ دھو دیتا ہے اور اپنے خیال میں وہ اہل قرآن بنتا ہے. لیکن خدا کی قسم وہ گمراہیت کے راستے پر چلنے لگتا ہے. اگر اسی طرح انٹرنیٹ کے مادھیم سے دین سیکھنا آسان ہوتا تو یہ جگہ جگہ مدرسے بنے ہوئے کیوں ہے؟ ان لوگوں نے 10-10 سال مدرسے میں کھپایا کیوں ہے؟ جب جا کر انہوں نے 10-10 سال مدرسے میں کھپایا تب جا کر اس لائق ہوئے کہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو سمجھ سکے. نہ یہ کہ خود اجتہاد کر سکے, خود قیاس کر سکے. نہیں, جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں سب مقلد ہیں, سب کے گلے میں تقلید کا ہار ہے, تقلید کا پٹا ہے. یہ اپنے بزرگوں کے اقوال کتابوں سے پڑھ کر آپ کو بتاتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ انٹرنیٹ کے ذریعے دین سیکھنے کی کوشش مت کیجیے, ورنہ آپ الگ الگ بھانت بھانت کی بولی بولنے لگیں گے, الگ الگ راستے پہ چلنے لگیں گے. اور گھر کے اندر ماموں سنی ہے تو بھانجا وہابی, بھانجا وہابی ہے تو چاچا اہل حدیث. پھر کوئی رافضیت کی بولی بولے گا, کوئی مولائیت کی بولی بولے گا. گھر کے غرض کے گھر میں چمن چمن کے پھول کھلنے لگے. دوسرے بات پڑے اللہ مطلب اناؤ والوں کو 2 سے 3 بار بتاؤ تب سمجھ میں آتا ہے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. بھیا درود پڑھنے کی گزارش کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ انٹرنیٹ ہی کی نحوست ہے کہ پہلے تو ایسا تھا کہ فرقے کتابوں کے ذریعے, لٹریچر کے ذریعے, چلت پھرت کے ذریعے, رشتے داری کے ذریعے گاؤں گاؤں جا کر اپنا پیغام پہنچاتے تھے, اپنا ماحول کریٹ کرتے تھے, ماحول بناتے تھے. اب بہت آسان ہوا یہ کمرشلوں نے جو ہے انٹرنیٹ بھی سستا کیا. پہلے لوگوں کی پکڑ سے باہر تھا, اب تو 200-250 روپئے میں ڈھیر سارا GB مل جاتا ہے. ایک فری کا چینل بنا لو اور چینل بنانے کے بعد وہاں کچھ اینٹک بات کرنے لگو, کچھ نئی بات کرنے لگو کہ ویوز بڑھنے لگے. اب یہ اینٹک بات کرنے کے چکر میں بھلے بیڑا غرق ہو جائے, لیکن لوگوں کی ویوز چاہیے, لوگوں کا جو ہے لائک چاہیے, کمنٹ چاہیے, شیئر چاہیے, تاکہ امریکہ مہربان ہو جائے اور ڈالر کی برسات ہونے لگے. ایسے ہی اینٹک بات کرنے کے چکر میں ایک گاؤں میں ایک صاحب تھے جن کو بہت چوٹ تھا, بہت کیڑا تھا کہ مجھے لوگ جانے پہچانے, میرا نام ہو, لیکن میں ایسا کروں کیا کہ لوگ مجھے جانے, مجھے تو کچھ آتا جاتا ہے. اب وہ مثال ہے, بیکار آدمی کچھ کیا کر, کپڑے اٹھے اور سیا کر. تو انہوں نے کیا کیا, بیٹھے بیٹھے ایک فتوا بک دیا کہ گدھا کھانا حلال. بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اب وہ فتوا جب نکلا ان کے زبانے بے فیض ترجمان سے, گلی کوچوں میں گشت کرنے لگا, پورے محلے کے اندر چلے فلانے صاحب تو گدھے کو حلال کہتے ہیں. اب جب کوئی دلیل پوچھنے جائے تو بولے نہ, میں دوسرے لوگوں کو دلیل نہیں دیتا. ہندوستان کا چوٹی کا کوئی عالم میرے سامنے لاؤ جس کے سامنے قطب مینار کا چاچا بن کر میں جاؤں گا ڈپلوما لے کر. اچھا کچھ لوگوں کے پلے نہیں پڑ رہا, پھر بھی سنو, سننا پڑے گا. دیکھو سادات کرام ماشاء اللہ یہ سن رہے, سماعت فرما رہے, حوصلہ افزائی اور خوش پناہی کر رہے ہیں. اور جب ان کی
पुष्ट बनाई है तो मैं क्यों न कहूँ कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरे सरकार। मुझे खारजी नाजवी कहने वालों, जब मैं स्टेज पर आया तो सबसे पहले मैंने सैयदजादे की 10 बोसी। मेरी मोहब्बत अहले बैत तुम्हारी तरह नहीं है जो घर में गली गई है कुरान और सुन्नत के हुदूद के अंदर। बहरहाल अब ये साहब ने जब फतवा मार दिया, पूरे मोहल्ले में, गली में, गांव में, अड़ोस पड़ोस के गांव में गश्त करने लगा। इतने मशहूर हो गए कि अब ये कहने लगे मैं दलील तो उसी को दूंगा जो बहुत छोटी का पाए का आखिरी नेक्स्ट लेवल का आलिम हो। तो भाई इनके लिए ढूंढ ढांड के घेर घार के एक बहुत बड़े अल्लामा साहब को लाया गया। जब अल्लामा साहब आए, लाखों का मजमा इस गदउल लजीम को देखने के लिए आया। ये कौन खर दिमाग है जिसने ऐसा उठ पटांग फतवा दिया? रात में कुर्ते की जगह पाजामा पहन लिया था, फिर बेदार के बुदन को ऐसा फतवा दे दिया। गाली नहीं दूंगा, अरबी फारसी में बोलूंगा। बहरहाल अब जब अल्लामा साहब इनके सामने आए, ये जुगतुल बुखारा सामने बैठा हुआ, तो इन्होंने पूछा कि भैया क्या मसला है? बोले मसला कुछ नहीं। बोले आपने क्या पूरे जमाने में शोर मचा रखा है, गधा हलाल है? क्या गधा वाकई हलाल है? बोले नहीं, बिल्कुल हराम है। तो फिर कहा ये क्या तमाशा? बोले इतने बड़े लोग मुझे देखने आते कैसे अगर मैं ऐसी नई बात करता? ये जोकर माई की महफिल नहीं है, ताली मत मारो, सुभान अल्लाह बोलो। बहरहाल अब ऐसा कुछ करने के चक्कर में इंटरनेट पर इतने फितने हैं, खुदा की कसम रात ना काफी है। एक जहलम का मिर्जा इंजीनियर, उसके फॉलोवर्स यहाँ होंगे। बेटा सुनो ना, मैं कल दोपहर तक उन्नाव में शिया, राफजी, मौलाई, अहले हुदैस, देवबंदी, कादियानी, चकरालवी, मिर्जा पलम्बर के मानने वाले, जावेद गांधी के मानने वाले, डॉक्टर उस्ताद के मानने वाले, शेख मोहम्मद के मानने वाले, जितने के भी मानने वाले हो, सारे के सारे आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सब हूँ उबैद रज़वी, मैं गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर अमर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुश शरिया में शेर पाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बराबर आवाज निकली, कलीम अरबी मुंबई वाला। अजीजाने गिरामी वकार, अब कुछ एंट्री करने के चक्कर में ऑनलाइन कितने हुए। अच्छा, अब जब आप यूट्यूब पे किसी को सर्च करते हो, देखते हो, फॉर एग्जांपल कलीम हनफी सर्च किया आपने, अब मेरा जिससे डिबेट हुआ रहेगा या मैंने उसका कभी तस्करा किया रहूंगा तो नीचे वो भी आ जाता है। अब लोग उसको भी सुनना चाहते, चले देखें क्या बोलता है। शुरुआत ऐसी होती है, देखें क्या बोलता है। अरे मैं तो बड़ा सुन्नी हूँ, पक्का वाटर प्रूफ मेरा ईमान है, मेरे ईमान पे हाथ नहीं आ सकता। बेटे इस खाम ख्याली में नहीं रहना। शैतान के पास 80,000 दाव है। बड़े बड़े औलिया और आबिदीन कहलाने वाले उसके चुंगल के अंदर आ गए। हमें गैरों की बात सुनना ही नहीं है। घोड़े को 2 पट्टी क्यों लगाई जाती है? ताकि इधर उधर देखकर बिके नहीं, मंजिल पर नजर रखे। मसलके आला हजरत की पट्टी लगा लो और अहले सुन्नत पे चलो और साफ उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखना गैर से कुछ काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। हमें गुरों की बात सुननी नहीं। क्यों सुने, क्यों अपना डाटा खराब करे? लेकिन कीड़ा बहुत है, मानता नहीं है। खुद मुहक्किक मैं सही गलत में फैसला करूंगा। अरे तू क्या सही गलत में फैसला करेगा जब हदीस समझने में बड़ी बड़ी सहाबियात को, उम्महातुल मुमिनीन को, सहाबा को हदीस समझने में गलती हुई है। खुदा की कसम तुम्हारी हमारी कोई हैसियत है? एक मिसाल दे दूं वरना बात अधूरी रहेगी। और आजकल काट छाट का बड़ा जमाना है। जो मैं नहीं कहता मेरे मुंह में अपनी जबान घुसेड़ के कहलवाना चाहते हैं। इस तरह की बदमाशियां मत करो, अभी शराफत से रहो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत हजरत फातिमा आई। सरकार ने 2 बातें कही। फातिमा रोने लगी, फिर हंसने लगी, चली गई। उम्महातुल मुमिनीन ने पूछा, ऐ फातिमा ऐसी क्या बात है कि आप पहले रोने लगी फिर हंसने लगी?
تو سیدہ فرماتی ہے میرے والد نے مجھے کہا ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں. باپ کی اس بات نے میرے دل میں گہری چوٹ پہنچائی اور آنکھیں ابل گئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. امہات المومنین نے پوچھا پھر دوسری بار ہنسی کیوں؟ فاطمہ فرماتی ہے میرے باپ نے فرمایا اے فاطمہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میری اہل بیت میں سب سے پہلے اس دنیا سے اس دنیا میں جو مجھ سے ملاقات کرے گی وہ تم ہو. تو اس خوشی میں ہنس دی. اب امہات المومنین کو شوق ہوا کہ چلو ہم بھی اپنے بارے میں پوچھیں, ہم میں پہلے کون ملے گی عورتوں میں. سرکار کے پاس آئے تھے جو اس وقت حیات تھی. حضور فرمائے, سرکار نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا وہ مجھ سے پہلے ملے گی. اللہ کی حدیث ہے, جب اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا وہ مجھ سے پہلے ملے گی, حضور کا وصال ہو گیا. تمام امہات المومنین نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر ایسے نشان بنانا شروع کیا تو سب سے لمبا ہاتھ نکلا حضرت سودا کا. سب نے طے کر لیا کہ بیویوں میں سب سے پہلے یہ جائیں گی دنیا سے. لیکن خدا کی قدرت دیکھیے, ام المومنین حضرت میمونہ کا وصال ہوا. نبی کی بات غلط ہو نہیں سکتی. امہات المومنین سر جوڑ کر بیٹھ گئی کہ سرکار نے جو فرمایا وہ حق, تو ہم سے کہاں غلطی ہوئی نبی کی بات سمجھنے میں. حدیث سمجھنے کے دعوے داروں, چھوٹے لوگوں, کالج کے اسٹوڈنٹوں, گرما اور سرما میں ڈھیلا لینا نہیں آتا ہے اور یہ ٹوٹی بھر کی زبان اٹھا کر بڑے بڑے اماموں پر بھونکتا ہے. فلانے 3 حدیث جانتے تھے, فلانے 4 حدیث جانتے تھے. ابو حنیفہ کو 3 سے زیادہ حدیث نہیں آتی تھی. ابے ابو حنیفہ کو جبل العلم کا نام ہے, مجتہدین کے سردار کا نام ہے, رسول اللہ کی بشارت کا نام ہے, مولا علی کی دعا کا نام ہے. ابو حنیفہ کے غلاموں کے غلام حضور محدث کبیر کو 70,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مستقے اعلی حضرت. حدیث سمجھنا باقی کے افعال ہے, بچوں کا کھیل ہے. ہم نے عمریں کھپا دی لیکن ہم حدیث کے معاملے میں اتنا نہیں بولتے جتنا یہ انگریزی سوٹ بوٹ پہننے والا گوگل کا مخلص اسلام 360 سے حدیث سیکھ کر آتا ہے. اب بخاری جھاڑتا ہمارے سامنے. بیٹے کسی اور مولانا سے جھاڑنا, کلیم حنفی نام ہے میرا. آئی سمجھ میں بات, مناظرے سن لینا تمہارے علماء کرائم سے جو میں نے کیے ہیں. اب جب امہات المومنین بیٹھ گئی کہ رسول اللہ کا فرمایا سچ, غلط ہو نہیں سکتا, مگر یہ ہوا تو غلط, کیا مسئلہ ہے؟ پھر وہ عربی زبان کے استعمالات پر, محاورات پر, عربی زبان کی بول چال پر غور کرنے لگی. تب ان کو سمجھ میں آیا کہ حضور نے جو فرمایا مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا. ہاتھ لمبا ہوگا سے مراد یہ گوشت پوشت والا ہاتھ نہیں, بلکہ جو زیادہ صدقہ کرنے والی ہے, زیادہ لٹانے والی ہے. سبحان اللہ. آئی سمجھ میں بات؟ یہ اتنی گہرائی, گہرائی, اتنا فہم چاہیے. اچھوں کو حدیث سمجھنے میں غلطی لگتی ہے. تم کہاں ہو؟ اب لوگ انٹرنیٹ کو ہم کہہ رہے مت سنو, مرزا کو مت سنو. لوگ کہہ رہے وہ بہت بڑا ترم خواہ ہے, بہت بڑا توپ ہے, بہت بڑا علم کا پہاڑ ہے. علم کا تو میں علم کا پہاڑ. ارے مرزا کمرے سے باہر آتا نہیں, کوئی عالم کو انٹری ہے نہیں, تو ایک کام کرنا, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا, یوٹیوب کے اوپر لائیو ڈیبیٹ کر لے. لائیو کلیم حنفی آئے گا, مرزا آئے گا. اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کر میں اولاد علی کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, جس دن مرزا میرے سامنے آیا اس کے بعد وہ دنیا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا. فلک کو بڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں, جلا کے خاک نہ کر دوں تو کلیم نام نہیں.
हजरात गिरामी वकार, हजरात गिरामी वकार, देखो कुछ उर्दू पढ़ लेना, जबानों बयान की नौकों फलक को सुधार लेना और फिर इंटरनेट पर आकर चैनल खोलकर दीन सिखाना, खुदा की कसम ये ज्यादती नहीं। मुझे बताओ, अगर किसी शख्स का कोई कानूनी मामला फंस जाए और वो मार्केट से अंग्रेजी लॉ की किताबें खरीद के लाए, कानून की किताबें खरीद के लाए, पढ़े और जबान पर उसको उबूर हासिल हो जाए अंग्रेजी पर, और वो काला जुब्बा पहनकर जज के सामने अगर मुकराती करने लगे, तो क्या इसकी इजाजत दी जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी इजाजत तो उसी को है जिसने कोर्स मुकम्मल किया है। पेट में दर्द होने के बाद सुनार के पास या चप्पल सीने वाले मोची के पास नहीं जाते हो, डॉक्टर ही के पास जाते हो। अल्लाह के बंदो, दुनिया में जब हर फील्ड के, हर काम के, हर शोबे के माहिर है, तो हदीस और कुरान का कोई माहिर नहीं है कि हर बच्चा आदमी इंटरनेट पे एक चैनल खोल ले और उस चैनल के माध्यम से वो हदीस और कुरान बताने लगे और लोग की शीरे मादक समझ के गपागप पीने लगे। अरे घामड़ों सुधरो, बेड़ा गर्क हो जाएगा तुम्हारा। अब मिर्जा ने किताबें सजा दी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हदीस नंबर ये, इंटरनेशनल नंबर ये, डोमेस्टिक नंबर ये, वाह वाह क्या बात। आज तक जितने यहाँ बैठे हैं, क्योंकि मिर्जा की हिमायत आजकल के मवाली बहुत हैं जी। मैं पूछना चाहता हूँ, मिर्जा ने आज तक अरबी किताब उठाकर अरबी इबारत पढ़ी? तुम ला कर दिखा दो, खुदा की कसम तुम्हारे वजन के बराबर में तुम्हें पैसा दूं। सुभान अल्लाह। कभी नहीं पढ़ी। अब तो चैट जीपीटी आ गई, अरबी उठाकर डाल दो, जो जबान में आपको चाहिए वो उठा कर दे देगा। कितना आसान हो गया ये इंटरनेट के मुहाफिजों को। ये कमबख्त हमारे वहीं पढ़ पढ़ के यहाँ आकर मुखराती बाजार से इंटरनेट पे चैनल खोल कर, अब ये मिर्जा साहब आए, पहले से बरेलवियत में करार नहीं आया तो फिर चले गए देवबंदियों की तरफ। वहाँ फजूल आमाल में सब दही दिखने लगा, हदीस उसको सही नहीं मिली, चस्का था जरा सही हदीस पढ़ने का, तो माशाअल्लाह चले गए अहले हुदैस की तरफ, गैर मुकल्लिदों की तरफ। फिर वहाँ भी इनको करार नहीं आया, क्योंकि तबीयत में मुकराती कूट के भरी है। फिर बोलने लगे रामसियों की बोली, यानी सब खुश बा मुसलमान, अल्लाह अल्लाह बा बरमन राम राम, कोई हमारे दर से खाली न जाए, साईं बाबा वाला मजहब। अब मिर्जा साहब जब कमरे में बैठकर हदीस सुनाने लगे, बनु उमैया पर, अमीरे मुआविया पर, हजरत हिंदा पर, सुफियान पर, वहशी बिन हरब पर, तलहा पर, जुबैर पर, उम्महातुल मोमिनीन पर, मुकद्दस सहाबा की जमात पर, ये लड़का जो उसको आलिम मुहक्किक मुदक्किर समझता था, धीरे धीरे जब उसकी 80% बात माना तो 20% क्यों नहीं मानेगा? 20% भी मानेगा। अब ये उसकी बोली बोलने लगा, लेकिन आलिम के पास आकर तहकीक नहीं किया कि मिर्जा साहब जो जन्नतुल फिरदौस की बॉटल में तुमको पार्सल कर रहे हैं, अपना बॉल पेशाब उसी को दीवाना मला जा रहा है, मैं तो जन्नतुल फिरदौस लगा रहा हूँ। अब एक घामड़ संडास पे चांदी का वरक लगाने से असलियत नहीं बदलती है, वरक हटाकर अंदर देख कौन सा माल है। गाली देता, बुरा बोलता, पागल हूँ मैं। मेरा दिल जलता, मुझे तकलीफ होती जब ये नौजवान 15वीं सदी में पैदा होने वाला उस मुबारक जमात के बारे में बात करता है, जिसकी तरबियत वहीये इलाही की रोशनी में हुई है, जिसकी तरबियत आमिना के लाल ने, अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम ने, फतहाई पैगंबर ने, रसूलों के सरदार ने की है। मुझे बताओ, पीर साहब की सोहबत में कोई चोर उचक्का अगर 1-2 साल रहे तो शर्म के मारे वो अपना बुरा पेशा छोड़ देता है। वो नबी जो अंबिया का ताजदार हो, जिस पे सिलसिला नबूवत को खत्म कर दिया गया हो, अब आमिना के लाल के बाद तख्ते नबूवत पर 7 तबक जमीन
छीने गए, बच्चे छीने गए, खेत खलिहान छीने गए, उन्हें वतन बदल कर दिया गया, उन्हें गन रेत पर खींचा गया, उन्हें फांसी के फंदे से लटकाया गया, उन पर तलवारों से ज़रबें लगाई गई। मुझे बताओ, ये राफियों का मजहब है कि जब नबी दुनिया से गए तो 1.25 लाख सहाबा दीन से फिर गए, सिर्फ 7 सहाबा इस्लाम पर कायम रहे। कितने? बात जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, हवाला मेरे पास मौजूद है। और मुझे धौंस मत देना कि हमारे बहुत बड़े मुज्तहिद साहब जहां से आएंगे, तुम्हारे मुज्तहिद साहब उन्नाव से आएंगे, लखनऊ से आएंगे, बंबई से आएंगे, पुन से आएंगे, नजफ़ अशरफ से आए, कि हौज़े इल्मिया से आए, कि ईरान से आए, कहीं से उठकर आ जाए, या वो बारवा जो सदियों से छुपा हुआ है गार में वो भी आ जाए, तो मेरी बात की तरदीद नहीं कर सकता। शिया मजहब में 7 के अलावा तमाम सहाबा दीन से फिर गए। मुसलमानों, मुझे कलेजे पर हाथ रखकर बताना कि एक पीर की सोहबत में हजारों लोग सुधर जाते हैं। जो नबियों का सरदार हो उसमें इतना पावर नहीं है कि सहाबा उसके जिंदगी में तो मुसलमान थे, उसके जाते ही दीन से फिर गए। ये बात तुम्हारी अक्ल मानती है? ये बात तुम्हारी अक्ल तस्लीम करती है? किसी भी गैरतमंद ईमान वाले की बात ये तस्लीम नहीं करेगी कि सहाबा दीन से फिर गए। हुजूर फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत 80 सफ़ें होंगी, आदम से लेकर दुनिया के आखिरी इंसान तक। हर नबी और उनकी उम्मत एक सफ़ में होगी। मैं और मेरी उम्मत 79 सफ़ों में होगी। शियत को जवाब देने के लिए नुक्ता दे रहा हूँ, दिमाग के दरीचे खोल कर सुनो। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना। जहन हाजिर है आप लोगों का? हुजूर फरमाते हैं 79 सफ़ों में मैं और मेरी उम्मत रहेगी। अब मुझे बताओ, अगर सारे सहाबा दीन से फिर गए, मुर्तद हो गए, तो उन सहाबा के मानने वाले करोड़ों अरबों सुन्नी 1400 साल से आज तक क़यामत तक, जाहिर सी बात है वो भी दीन से फिर गए। मुसलमान में खाली ये आटे में नमक से भी कम तादाद वाले मुसलमान। अल्लाह ने इतनी बड़ी जन्नत इन मादमी लोगों के लिए, तबर्राइयों के लिए, राफियों के लिए बनाई है। कम वक्तों क्या कह रहे हो, होश के नाखून लो। सहाबा के इस्लाम का इनकार कर रहे हैं। ये 7 सहाबा के सिवा तमाम सहाबा दीन से फिर गए। मैं पूछना चाहता हूँ, सहाबा ने जब इस्लाम कबूल किया तो क्या देखकर कबूल किया? कुछ भी तो नहीं था, कुछ भी नहीं था। खुदा की कसम, उनका ईमान लाना दिल से था, अल्लाह वो रसूल के लिए था। उस मुबारक जमात पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। अब मिर्जा जैसे लोग, नजीबुल पादरी जैसे लोग, अब कुछ खानकाहों के गधा नशीब। मैं सिर्फ पोंगे पीरों की बात करता हूँ। गुड़िया पीर, लुटिया पीर, चुटिया पीर, कामत दुनिया पीर, ये जितनी सरकारें हैं मीरास में आई है, उन्हें मसनदे इरशाद, सावों के तसव्वुफ में मुकामों का नशेबंद। हम फला की आल, हम फला की आल, थे तो वो तुम्हारे आबा, तुम क्या हो? जरा अपना बताओ, आप क्या हो? हुजूरे वाला, आपके बुजुर्गाने दीन की अजमत मुसल्लम, आपकी जाते वाला से उम्मत को क्या फायदा हुआ, सिवाय इसके कि मुरीदों में घूम घूम कर नजराना बटोरना, अपना और अपनी औलादों के खाने का इंतजाम करना, और फिर अपनी निजी महाफिल में सहाबा पर भोंकना, हजरत अमीर मुआविया पे भोंकना, अल्लाह के नबी के जलीलुल कद्र सहाबा अबू बकर और उमर और उस्मान के मर्तबे को घटाना, ये सुन्नियत नहीं है। अल्लाह की कसम, ये राफजियत है। आजकल बहुत से पीर भी राफजियत की बोली बोल रहे। भाई समझ में बात, बहुत से पीर अब उनके मुरीदीन का अलग ही शौक है, अलग ही मजहब बना लिया। पूरा दीन से नमाज
देखा जी अल्लाह मालिक मिले नहीं तो क्या करन भैया बाप को शरीर प्यास लगी और एक बेटे से कह रहे बेटा पानी पिला बेटा कह रहा जल रही कितनी देर तो जल रही बाप ने कहा बेटे गिरे जा कोई नहीं आपका वहां से आप पहुंच सकते हो। वो कह रहा है कम वक्त पानी पिला छोटा जाता है ट्रेन से पानी ला कर देता है इसलिए खुद को माना वो सही या तो अपनी तारीफें करना वो सही ये देखो तो पहले भाई की बातें कर रहे हर वक्त जाने का पूरा मामले हुए रहते हैं इनके घरों में जाओ इनके खामखाओं में जाओ ये तो अगले की तरह तमाम हो गए और जो ट्रेन के चिलम से जुड़े होते हैं और माशा अल्लाह चांदी अपन अनेक डालेगा मुझ पर निगाह मत रखो अपमान को कपड़े बोलता है खाना पीना टेंशन क्या है बिना किसी के सफर करेंगे ये कानून का उल्लंघन कर रहा है ये जितने पौधे सबको उठा के डालो अंदर बिना टिकट के रेल में सफर करना हराम सब हराम खबरदार तुम्हें किसने कहा जाना बंद है वाजिब है बार बार अजमेर के चक्कर लगा रहे हैं अगर तो चक्कर लगा रहे लोगों को चक्कर लगा अजमेर के चक्कर लगा रहा ज्यादा दिमाग खराब हो गया तीन साहब ने ऐसी कुड़िया दे दी है माशाअल्लाह कुछ भी करो अली वाले हो अहले बैत वाले हो पंजतने पाक वाले हो मोहम्मद साहबा पर मस्जिद में जाना नहीं नमाज पढ़ना नहीं आलिमों के पास जाना नहीं ये सलाह बने अब ये और मसाला सला समुद्र कयामत के मैदान में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा तीन साहब किसी ये भाई ऑफिस में बैठकर सैयदुल मलाइका से मुरीदों का टेंडर बात कर रहे होंगे मेरे इतने मुरीदों को अंदर सूखना है क्या पानी क्यों हुआ अच्छा तुम नहीं बोलोगे तो नहीं कागज अरे देखो इनका नारा रोक नहीं रहा जैसे मेरा मुनाफा रुकता है बहुत आता है रोजाना मुनाफा आता है लेकिन ऐसा नहीं करता सामने आए तब तो पीछे आवाज नहीं आती है थोड़ा करीब हो जाओ फिर ये बीच में इतना हिंदुस्तान पाकिस्तान का नक्शा क्यों बना रखा उसको फुल करो आप हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह हजरत पीर साहब आप भी आगे तशरीफ लाइए क्या आप अलग सिलसिले थे अच्छा माशाअल्लाह ये नौजवान बच्चे मिर्जा साहब को सुनकर मिर्जा इंजीनियर पलम्बर को सुनकर नजीबुल पादरी को सुनकर ये पोंगे पीरों को सुनकर मस्ती में लीन है ये शराब से जुए से नशे से माँ बाप की दिल आजादी से हुकूकुल इबाद बोलने से बात नहीं आ रहा समझ रहा जन्नत कंफर्म है कयामत के मैदान में जब आदम जैसा जलीलुल कद्र नबी कहेगा इस हाकुला गई मेरी नहीं चलती जाओ कहीं और जाओ हजरत इब्राहिम कहेंगे इस हाकुला गई इसके तीन साहब मुरीदों की बख्शिश करवाने के लिए मीटिंगें कर रहे होंगे अरे दीवाने मुझे नहीं पता पीर साहब को सलिया भुजे से मसाला लगाकर कायदे से उनको कानून बनाया जा रहा तरक्की करते करते मिल गए मुझको मैं तो खाया मैं तो नाचू की पूजा करेगा आदमी होते हिजड़ा बन गया तुम पीरी मुरीदी का मैं मुखालिफ नहीं हूँ ये सादात किराम को बैठे इनकी झूठियां मेरे सरों का तार क्योंकि वहां पड़ी है जो सैयद है जो खुदा की कसम अपने लाना के दीन की हिफाजत कर रहे हैं और जो सैयद होकर हजरत सहाबा को जहन्नमी कहे मेरा ऐलान सुन लो अल्लाह की कसम वो काफिर है उसकी तौहीन वाजिब है उसकी तकदीर फर्ज है वो सैयद हो ही नहीं सकता वो सैयद हो ही नहीं सकता जो किसी सहाबी को काफिर कहे या मां अल्लाह जहन्नमी कहे अब ये पोंगे पीरों ने जन्नत
जन्नत में जाने के लिए मरा जा रहा है बगैर अमल के। खुदा की कसम, अल्लाह के नबी का इरशाद है कि जन्नत को सख्तियों से घेरा गया है और जहन्नम को ख्वाहिशात नफ्सानी से घेरा गया है। यानी जितना तुम शैतान के रास्ते पर चलोगे जहन्नम से करीब हो जाओगे, और जितना ज्यादा दीन पर सख्ती से अमल करोगे उतना ज्यादा तुम जन्नत के करीब हो जाओगे। कि जहाँ सरवरे अंबिया अल्लाह के हुजूर माथा टेक कर रो कर अपने रब को मना रहे होंगे, बरेली के इमाम फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी बंद होगा, रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। जो मुंह में आया बके जा रहा है, इंटरनेट पर गालियां दी जा रही है। अब इतना ही नहीं कि हजरत अली को अबू बकर उमर से अफजल कह रहे, बात इससे बहुत आगे बढ़ गई। तमाम अंबिया से अफजल कह रहे कि नहीं कह रहे? खुदा का खालिक कह रहे हैं, मौला अली को खुदा का खालिक। 13 रजब आती है, सुन्नी कहलाने वाला केक काट रहा है, आतिशबाजी कर रहा है, भांगड़ा कर रहा है, डीजे लगाकर नाच रहा है। खुदा की कसम बता, कल बरोज़े महशर मौलाए कायनात तेरी तरफ देखेंगे नहीं। जिस नबी ने आलाते मौसीकी को तोड़ दिया और फरमाया कि आन करीब मेरी उम्मत में कुछ लोग आएंगे जो शराब को हलाल करेंगे, रेशम को हलाल करेंगे और गाने बजानों को हलाल करेंगे। कौन सा दीन पढ़कर आए हो तुम बेवकूफों? इन तोपों के चक्करों में सहाबा पर घूमते हो। और फिर जलीलुल कद्र सहाबा, खास तौर से हजरत अमीर मुआविया ईरान की फैक्ट्री में गई हुई रिवायतें उठाकर लाता है। हमसे कहता अमीर मुआविया की शान में कोई सही हदीस नहीं, कोई सही हदीस नहीं, और खुद राबियों की गई हुई हदीसें उठाकर लाता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मुआविया का पेट न भरे, ला अशबअल्लाहु बतनहु फी दुनिया। फिर कभी कहता है अल्लाह हजरत अली से जंग करके वो बागी, खारजी, फसादी, जहन्नमी हो गए। फिर कहता है, और जिनकी मोहब्बत में कहता है, जिनका झुट्टन खाकर कहता है, जरा उन्हीं की किताबों में देख क्या लिखा हुआ, बताऊं? सुनने के मूड में हो? जी जी बेशक। देखो मैं जानता हूं मजमे में हर टाइप के लोग हैं। सवाल जवाब करना चाहो तकरीर के बाद मोस्ट वेलकम, अल्हम्दुलिल्लाह बैठा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब फैज जारी होता है तो सारी रिवायात रिवायात सबके सब मुस्तहदर होती है, दरिया बहने लगते हैं। टेंशन मत। कुर्बुल इस्नाद शिया मजहब की किताब है और तशय्यो में अइम्मा मासूमीन की बात नबियों के बराबर होती है। शिया किताब कुर्बुल इस्नाद अल-हिमयरी की है कि वो कहता है इमाम जाफर से पूछा गया बताइए मौला अली के मुकाबले में आने वाले सैयदा आयशा सिद्दीका, हजरत तलहा, हजरत जुबैर या हजरत अमीर मुआविया ये कौन थे? तो इमाम जाफर फरमाते हैं कि मेरे वालिद सैयदना इमाम बाकिर से भी ये सवाल हुआ। तो इमाम बाकिर ने अपने वालिद इमाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, उन्होंने सैयदना हुसैन से हमने जब अपने वालिद से पूछा आपके मुकाबले में जो आए थे वो क्या काफिर थे? मौला अली ने फरमाया नहीं, वो मोमिन थे, मुवहिद थे, अल्लाह वाले थे। फिर पूछा गया अमाहुम, वो कौन थे? क्या वो मुनाफिक थे? मौला ने फरमाया नहीं, वो मुखलिस थे। अरे अपने आप को मौलाई कहने वाले सुन, ये मौला अली का फरमान और 100% शिया किताब से 100% शिया किताब से पूछा गया कि वो कौन थे? मौला अली फरमाते हैं कि खुवानुना बगौ अलैना, वो हमारे भाई थे जो हमसे अलग हो गए। बताओ मौला अली ने मुआविया को भाई कहा या नहीं कहा? अगर ये किताब शियों की न हो, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, उन नाव के चौराहे पर कलीम आदमी को तुम तख्ते तार पे लटका देना। कहाँ बैठे जा रहे हो? मौला ने भाई कहा और तुम कह रहे हो मुआविया बागी थे, फसादी थे, जहन्नमी थे। अली मुआविया भाई भाई हैं।
ढेर हो जाएगा। ये सवाल हर शख्स अपने जहन में निकाले। राबतियत को देर करना हो, एक ही सवाल पर जब भी मुहर्रम आता है सीना पीटने लगते हैं, मसाइल बयान करने लगते हैं, आलाम बयान करने लगते हैं और वो पोंगा फंसाते हैं कि क्या बेवाएं होती हैं। ये हर साल बेवा होते हैं और इतनी मजबूत बेवा होते हैं कि माशाअल्लाह अल्लाह के नबी फरमाते हैं लईसा मिन्ना मन दरबल हुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदअवल जाहिलिया, जो मातम के लिए अपना गिरेबान फाड़े, गालों को पीटे, बालों को नोचे और जाहिलों की तरह पोंगा पसारे, वो मेरी जमात से नहीं है। शिया जातियों को सुनता है रात में दिन भर तो काम खा के सोया रहता, अम्मा बहनें दूसरों के यहाँ जाकर झाड़ू पोछा करती है, तब जाके घर चलता है और रात में इसकी मोहब्बतें अहले बैठ, अरे बाप रे बाप, एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है। शौकत अली शौकत, फरहान अली वारिस, शहंशाह नकवी, फलाने ढिमकाने, ये वो। एक बात मैं कहता हूँ और कई जगह कहा, खुदा की कसम तुम्हारे लिए नहीं। शिया मजहब को समझना है 10 शिया जातियों को पकड़ के लाओ और एक एक कमरे में बंद कर दो और 10 शिया आलिमों को लाओ, एक एक कमरे में बंद करो। जाति वो जो नोहा पढ़ते और आलिम वो जो मिंबर पर बैठ कर खिताब करते हैं, उनमें आलिम अलग है, जाकिर अलग है। लाओ बिठाओ, खुदा की कसम उनसे वाक़िया करबला सुनो, 10 से सुनो, 10 आलिमों से 10 जाकिरों। अगर 2 का भी एक जैसा रहा, मैं अपनी बंबई की पूरी जायदाद तुम्हारे नाम पर, अगर 2 का भी एक जैसा रहा, इसीलिए तो पीछे, इसीलिए पीछे हो। 2 का भी एक जैसा नहीं निकलेगा। अरे वो तो दुआ दो यजीद को जो तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करके गया, हर साल उसी के नाम का पोंगा पसार पसार के ढेर सारा माल बटोरते रहते हो। बताओ किस मजहब की बुनियाद वाक़िया करबला पे हो और वही उस मजहब में सच्चा नहीं है, तो बाकी रिवायात का हाल क्या होगा? बाकी रिवायात का हाल क्या होगा? बहरहाल अब ये शिया जाकिरीन को सुन के सहाबा किराम के बारे में अजीब बुग़्ज़ पाल लेता है कि देखो सैयदा दरबार में गई, 3 घंटा खड़े रही और 2 बच्चे लेकर गई। दरबार तेरे माँ ने बनाई थी कि तेरे बाप ने बनाया था? दरबार फारसी लफ्ज़ है। अरे वहाँ तो रसूलुल्लाह की टूटी हुई चटाई थी, जहाँ मुसलमानों का अमीर बैठता था। वो हमारा दौर था जब खलीफा के पास एक्स्ट्रा चादर आ जाए तो लोग सवाल करते थे ये कहाँ से आई, वो हमारा दौर था। आज अगर सवाल उठाओगे तो उठा लिए जाओगे, बम्बई भी नहीं पहुंचोगे। मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, खुदा की कसम मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि शिया मजहब की बुनियाद मुकम्मल तौर पर झूठ है। देखो मौला अली ने इन बुजुर्गों को अपना भाई कहा, खुदा की कसम सहाबा के दिल आपस में मिले हुए हैं, उनमें जो झगड़े हुए, हम जैसे तुच्छे लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब इस वक्त जन्नत में टहल रहे हैं। अभी तू मरा नहीं, खपा नहीं, कब्र में गया नहीं, सवालों जवाब के मरहले से गुजरा नहीं, कब्र की सख्तियों में आया नहीं, अभी से तू फैसले कर रहा है उन नुफूसे खुफिया के। अल्लाह के नबी का फरमान सुन, अहले बैत से मोहब्बत क्यों है? नबी के घर वाले इसलिए ना होते तो मोहब्बत होती नहीं होती। हाँ ना कुछ तो बोला करो। असल में मैं कब से कंफ्यूज हूँ, ना वालों को मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं ही दीवाना हूँ जो पसीना बहाए जाए। तुम तो बहुत वफरात हो मेरे लेफ्ट साइड वाले, ये राइट साइड वालों पता नहीं है खामों को मेरे को इतना सख्ती से अमल नहीं कर रहे कि कहीं उनका वजू खाली ना हो। नहीं बोलो इतना बोलने से वजू थोड़ी खाली हो। और खैर मुकल्लिदों के यहाँ तो जब तक बम की तरह ना पूरे टूटता नहीं, पूरा धमाका होना चाहिए। करो दीवार से आमीन, वो अलग है। नहीं उनको भी दोष दूंगा बाद में, ऐसे कैसे? उसका तो मैं स्पेशल डॉक्टर हूँ। तो सुनो हज़रात गिरामी वक़ात, अल्लाह के नबी से मोहब्बत है आपको, क्यों अहले बैत से मोहब्बत है? क्यों वो नबी के घर वाले?
नबी का इरशाद सुनो। हजरत उवैन बिन साइदा रावी है, मुस्तदरक हाकिम की हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते और सही हदीस है, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुन लिया। देखो हमारे आका रब के चुने हुए हैं, किसी और का इंतखाब नहीं है, किसी इलेक्शन में सिलेक्शन नहीं हुआ है, रब ने उन्हें चुना है। तो रब के चुनने में कोई गलती नहीं है। इसीलिए तो फरमाया वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, मेरे आका की वो जात है। फिर मेरे आका फरमाते हैं जब अल्लाह ने मुझे चुना तो किस जमाने में भेजना है, कौन से दौर में भेजना है, कौन से खितों में भेजना है, कौन से रहमों और सुल्बों में भेजना है, किस कबीले में भेजना है, ये सब फिक्स हुआ। अब मेरे साथी, मेरे जानिसार, पहरेदार, यारे खास कौन बनेंगे ये भी तय हो गया। नबी फरमाते अल्लाह ने मुझे चुना, वख्तार अली असहाबन, और मेरे लिए मेरे सहाबा को। जरा जिगर का जोर लगाकर कहो सुभान अल्लाह। और एक तो मसला ये भी मालूम कर लो, नजराना सिर्फ शायर ही को देना सुन्नत नहीं, मुक़र्रिर को देना डबल सवाब। इससे मांग नहीं रहा हूँ, सहमत मत करो, माहौल बिगाड़ो मत, शांति से बैठ करो। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ात, नबी फरमा रहे अल्लाह ने मुझे चुना, मेरे लिए मेरे सहाबा चुना। आप देखो सहाबा जितने के जितने हैं, पहले दिन के लेकर हिजरी 11 में जब आमिना के लाल दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, उस वक्त तक बनने वाला सहाबी जितने सहाबा है, ये पूरी मुबारक जमात, ये पूरी मुबारक जमात मुसलमान है, मुत्तकी है, परहेजगार है, आदिल है, शिफाफ है, ये सब हुज्जत है, ये अल्लाह का इंतखाब है, इनसे मोहब्बत मत है, इनसे बुग़्ज़ हराम है। ये 12 बातें कहने में बिता दो। नबी फरमाते हैं सहाबा को मेरे लिए चुन लिया, वजअलनी मिनहुम क़ुर्रा व अंसारा व तो हुजूर फरमाते हैं इनमें से कुछ को अल्लाह ने मेरा मददगार, कुछ को मेरा यार, कुछ को मेरा रिश्तेदार बनाया। अमन सब्बहु व अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। तो इनमें से जिनको बुरा कहे उस पर अल्लाह की फरिश्तों की, तमाम लोगों की लानत। बेटा मोहब्बत अहले बैत के चक्कर में ईमान का तोता उड़ गया। तू समझ रहा मेरे पास भरपूर माल है, तेरा जेब कट गया, दीवाने अब तू जाकर वहां नंदा फकीर सुनेगा। हम देख अहले सुन्नत, हम अहले सुन्नत सहाबा और अहले बैत के पास दोनों से मोहब्बत। नबी तो बरेली के इमाम ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा, वहां असहाबे हुजूर नज्म है और गाँव इकरत रसूलुल्लाह। इनके दिलों में कुछ मैल आ गया, साफ कर लो। नबी ने कहा सहाबा अल्लाह का इंतखाब है, उनमें मेरे रिश्तेदार हैं, उनको बुरा कहने वालों पर अल्लाह की फरिश्तों की लानत है। ला युक़बल मिन्हु यौमल क़ियामति सरफुन वला अदल। और जो ऐसा करे अल्लाह ना उसका फर्ज कबूल करेगा, ना उसका फर्ज कबूल करेगा। आगे बैठे होगा। इतना ज्यादा मोहब्बत अहले बैत में गुलू कर गए कि कह रहे हम शिया है, शिया। हम एक सोचा और छोड़ दिया, ये शिया वो जमात है जिसका नाम कुरान में आया। सुना जवाब दो, 2-3 लोगों को जवाब चाहिए, वो मेरी क़याम गाह पे आना होगी। माशाअल्लाह आपका तो बहुत याफ्ता मुफ्ती बैठे, पहले से क्या बताया आपने? या तो बहुत और से
कभी बोलते नहीं, या तो फिर कुछ सुन ही नहीं रहे कि कब मौलाना छोड़े कब हम घर जाकर आराम करें। एक सोचा ये छोड़ा गया कि शिया का नाम कुरान में आया है बेशक आया, और आयत पेश करते हैं सूरा नंबर 37 की आयत नंबर 83, वइन्न मिन शियातिही ला इब्राहीम, और बेशक इब्राहीम भी शिया थे। बोले बताओ जब इतना बड़ा नबी शिया था, और शिया तो उस दौर से चले आ रहे हैं, उस दौर से, मौला अली के दौर से नहीं है, रसूलुल्लाह के दौर से नहीं है, हजरत मूसा ईसा नहीं, हजरत इब्राहीम के दौर से वो भी शिया थे। फिर हम शिया क्यों न बने? अब ये बेचारा जिसको अरबी नहीं मालूम, या वो गैर मुकल्लिद जो सऊदी जाकर भोजपुरी अरबी सीख कर आया, वो बुखाराती के अरबी पढ़ रहा है, वो भी अच्छा खासा बहकावे में आता, अच्छा हमारा नाम यहाँ से, इन्होंने कहा हमारा नाम कुरान से है, इन्होंने कहा हमारा नाम कुरान से है। और एक फिरका आया इनके बाद अहले कुरान, वो तो इतना ज्यादा जावेद गांधी एक शख्स है, जानते हैं आप लोग, जो जानता हाथ, हाँ कुछ लोग जानते हैं। बेचारा आजकल बहुत उदास है, क्यों मालूम है? बस 2-4 ही हराम चीजें रह गई है हलाल करने की, पूरा दीन में जितना हराम था सब हलाल। हदीस में है, कुरान में है, हदीस में है, कुरान में है कि लोगों को भी आसानी चाहिए, नहीं आसानी। अब 30 रकात पढ़ना, 8 रकात पढ़ना, वाह वाह वाह। तो आज में जब जन्नत मिल रही है और हदीस से शादी से तो लोग आशिक रहेंगे ना। तो ये अहले कुरान का अहले हदीस का भी अपडेट वर्जन है, अहले हदीस का भी अपडेट वर्जन है। एकदम इन शर्ट करके नमाज पढ़ेंगे, कोई सुन्नत कोई नफ्ल नहीं, हदीस को मानते नहीं है, सिर्फ कुरान कुरान कुरान। और ये अपना नाम कहाँ से साबित करते मालूम है? हदीस। अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया या अहलल कुरान औदिरू फइन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्र, ऐ अहले कुरान वित्र पढ़ो क्योंकि अल्लाह वित्र है, वित्र को पसंद फरमाता है। खुदा की कसम यहाँ नुक्ता दे रहा हूँ, इल्मी नुक्ता गौर से सुनना, वलमा भी आइम्मा भी और अमाम भी। शियों ने अपना नाम कहाँ से निकाला? कुरान से। अहले कुरान ने अपना नाम कहाँ से निकाला? परवेजी चकरालवी, शेख मोहम्मद पाकिस्तान का, जावेद गांधी, ये सब अहले कुरान है। हदीस को नहीं मानते लोग, ये अपना नाम कहाँ से लेते? अबू दाऊद की हदीस से कि नबी ने फरमाया या अहलल कुरान, ऐ कुरान वालों, अबित्रू फइन्नल्लाह बित्रुन युहिब्बुल बित्र, अल्लाह अकेला है और बित्र को पसंद करता है। देखो हम तो नबी के जमाने से है, नबी ने कहा अहले कुरान, माशाअल्लाह। हम ही लोगों का नाम हदीस कुरान में नहीं है यार, है कि नहीं हमारा? थोड़ा हाँ बोलो तो पानी लाओ। शायर साहब बेचारे कितनी मेहनत कर रहे, बताओ, बार बार बॉटल खोलने की जहमत फरमा रहे। ना सवाब तो बेशक नहीं रहा, नजराना भी मिला प्लस सवाब भी मिल रहा। बहरहाल शियों ने अपना नाम दिखाया कुरान करीम से, अहले कुरान ने अपना नाम दिखाया हदीस से। अब ये अंग्रेज की पैदावार, गूगल के मुकल्लिद अहले हदीस, ये तो पीछे रहे। जब हम कहते तुम अंग्रेजी दौर में पैदा हुए, बोले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अंग्रेजी दौर में पैदा नहीं हुए, बल्कि इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल है साहिबुल हदीस इंदना मन यस्तअमिलुल हदीस, कि अहले हदीस वो है जो हदीस पर अमल करते हैं। देखो हम तो इमाम अहमद बिन हम्बल के जमाने से, ये 3 बातें मैंने बताई, कुछ नुक्ते बताता हूँ जो इससे पहले कभी सुने ही नहीं। वैसे तो मेरी हर बात यूनिक होती है, एंटिक होती है। शिया कुरान को मानता नहीं, दलील कुरान से दे रहा है। अहले कुरान हदीस को मानता नहीं, दलील कहाँ से दे रहा है? अहले हदीस बुजुर्गों के कौल मानता नहीं है, और अपने जमात का नाम कहाँ से दिखा रहा है? इमाम अहमद बिन हम्बल। तो उनके जो उस्ताद है इमाम शाफी, उनके जो उस्ताद है मोहम्मद बिन हसन अश्शिबानी, उनके जो उस्ताद है इमाम अबू हनीफा, उनके लिए तो दिल में कोड़ है, जबान पर कैंसर है, दिन रात भागता रहता है। उनको ये नहीं आता था, उनको वो नहीं आता था, उनको वो नहीं आता था, और उनके शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द से दलील लेकर आ रहा हमारा नाम अहले हदीस। तो मालूम है ये कैसे अहले हदीस? अहल के माने वाले, जैसे अहले बैत घर वाले, अहले हदीस यानी हदीस वाले। गुलाब जामुन खाए हो
उसमें गुलाब रहता है कि जामुन है? गुलाब एक फूल है, जामुन एक फल, दोनों में कुछ रहता है। शिमला मिर्च में शिमला रहता है, कश्मीरी पुलाव में कश्मीर रहता है। ऐसे ही इन गरीबों का नाम सिर्फ पहले है, ना ये अहल है ना इनके पास। खुदा का गुरु बेटा तुमको भी अगर बहुत बहरहाल ऐसे इन गरीबों का नाम सिर्फ पहले हदीस। अब ये इमामों को मानते नहीं, लेकिन और जब अपनी बारी आएगी तो इमामों का कौल उठा कर लेकर आएंगे। अहले कुरान ने अपना नाम हदीस से दिखाया, शीयों ने अपना नाम कुरान से दिखाया। अच्छा भाई, ये पहले शीयों का मसला साफ कर दूं, बाद में इनका मसला साफ करूं। यहाँ जो ये फरमाया गया है उनसे पूछना चाहिए आलिम से, कुरान में जो शिया का लफ्ज आया है ये मजहब के लिए आया है या गिरोह के? सवाल क्या, मजहब के लिए आया है या गिरोह के लिए? अगर मजहब के लिए आया है कि शिया मजहब सही है, हक है और इब्राहिम शिया थे, तो उनको एक दो आयत और सुना देना। कौन सी आयत सुनाओगे? कुरान करीम की सूरह 28 की आयत नंबर 4, इन्ना फिरऔन अला फिल अर्दि व जअल अहलहा शियअन यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम। बेशक फिरऔन को जब हमने जमीन पर हुकूमत दी तो उसने अपने शिया बनाने शुरू कर दिए। साफ सूरह नंबर 28 की आयत नंबर 4, वजअल अहलहा शिया। फिरऔन के मानने वालों को क्या कहते हैं? ऐसे थोड़ी चलेगा, मीठा मीठा हड़प हड़प करवा करवा कुछ तुम्हारे बाप का राज है, पूरा पूरा लो ना भाई। अब आओ सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 159, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै। वो जिन्होंने अपने दीन में अलग अलग फाटे फोड़ लिए, रास्ते निकाल लिए और कई शिया में बढ़ गए, कई शियों में गिरोहों में बढ़ गए। ऐ महबूब, तुम्हें उनसे कोई लेना देना नहीं। देखो कुरान ने फिरऔन के मानने वालों को शिया कहा, कुरान ने दीन में टुकड़े करने वाले को शिया कहा। और एक आखिरी आयत सूरह नंबर 19 की आयत नंबर 70, सुम्मा लनंज़िअन्न मिन कुल्लि शियअतिन अय्युहुम अशद्दु अला अर्रहमानि। क्या फिर हम शियों में से निकालेंगे उनको जो रहमान पर ज्यादा भोगता है, बेबाकी करता है, अल्लाह के भोगने वाले को शिया कहा। फिर बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, शिया मतलब गिरोह होता है, मजहब नहीं होता है। 3-4 और सुना दोगे तब समझ में आएगा। तो अब यहाँ जो फरमाया हज़रत इब्राहिम के लिए कुरान ने, वो इन्ना मिन शियअतिही लइब्राहिम, ये जो शियअतिही की है ना, है आज की ज़मीर का मर्जे कौन है? आज के ज़मीर का मर्जे कौन है? हज़रत नूह है, यानी इब्राहिम की नूह के तरीके पर है। इसका मतलब शिया मजहब नहीं है। जैसे शिया ने अली का गिरोह, शिया ने मुआविया का गिरोह, शिया ने यजीद का गिरोह, शिया ने इब्राहिम का गिरोह, शिया ने फिरऔन का गिरोह। शिया कहते हैं सिर्फ गिरोह को, शिया सिर्फ गिरोह को कहते हैं। इसकी कोई फजीलत कुरान में नहीं आई है, तुमको झूठ बोला जा रहा है। अब लोग कहेंगे मौलाना आपका नाम कुरान में आया है, ऐसा ये बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग जज्बात में बैठ के हाथ उठा दिए, इसका मतलब सुन्नी सुन्नत का इसमें मंसूब, इसका इसमें मंसूब है सुन्नत का। उन्नावी उन्नाव का रहने वाला, लखनवी लखनऊ का रहने वाला, सुन्नी सुन्नत का करने वाला। कुरान में कई मकामात पर ये लफ्ज आए हैं, जैसे सूरह नंबर 35 की आयत नंबर 62, सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। ये अल्लाह का दस्तूर है जो चला आ रहा है और तुम अल्लाह की सुन्नत को बदलता
जो इजाफत है वो अपने तरफ की है, इसका जो मुनाफ है वो अल्लाह ताला है। कभी इस लफ्ज़ सुन्नत को अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब किया, कभी रसूलों की तरफ मंसूब किया। सुन्नी कहते हैं सुन्नत पर चलने वाले को, और ये लफ्ज़ कुरान में अल्लाह के लिए भी आया है, उसके प्यारों के लिए भी आया है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की, उसके रसूल की, उसके महबूब बंदों की बातें मानते हैं। इसीलिए हम अल्लाह, उसके महबूब और उसके नेक बंदों की बातें मानते हैं। बुजुर्गाने दीन, आपको बहुत धोखे में रखा जाता है, वक्त बहुत हो चला है, वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं और लंबी चौड़ी तकरीर करूं। और सारा आज ही के दिन इसी लोग के इमाम ऐसा मत करो, बुकराती मत करो, उलमा से जुड़े हुए रहो, मशाइख से जुड़े हुए रहो, सादात से जुड़े हुए रहो। जो सादात अहले बैत पाक और सहाबे किराम की मोहब्बत रखते हैं, खुदा की कसम उनके हाथ चूमो, उनके कदम बोसी करो। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल है जिनके जरिए हम जन्नत में जाएंगे। लेकिन जो अपने आप को सैयद कहलाकर माअल्लाह रब्बिल आलमीन सहाबा को ढूंढता है, हम ऐसे सैयद की तारीफ नहीं करेंगे। बहुत ही आला हजरत याद आते हैं, वरना तो फाजिले बरेलवी है। मैं बहुत जलाली आदमी हूँ, एक साथ में बोला मैं फाजिले बरेलवी बोला, मेरा दिल ऐसा किया कि 2 साल चमक ऐसी लगाऊं कि सातों चमक रोशन और समझने वाले समझ। फाजिले बरेलवी जरा फतावा रजविया का खुतबा पढ़ लो तो समझ में आएगा। जो लोग आला हजरत को मौलवी अहमद कहते हैं, फाजिले बरेलवी, तो खुतबा पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये तो जबल करीम है, इल्म का बेटे, तब तुम्हें समझ में आएगा। खुदा की कसम, तो आला हजरत ने सैयदों की तालीम की, आला हजरत ने सैयदों की तालीम की, आला हजरत ने सैयदों की इस्लाह भी की, आला हजरत ने सैयदों की इस्लाह भी की है। और हम कहते हैं कि अगर तुम वाकई में सैयद साबिर रहमतुल्लाह का पूरे बात तुम्हारे जिस्म में है, तो मुझे बताओ कि जिस आली ने हजरत उस्मान की घर की हिफाजत के लिए अपने दोनों बेटों को रखा कि खबरदार खलीफा पे कुछ आंच ना आए, जब आप शहीद हुए तो आपने इमाम हसन मुस्तफा को एक जोरदार मुक्का मारा कि तुम्हारे होते हुए बलवाई अंदर कैसे घुस गए। उनके दिल आपस में पाक है, साफ है, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो बुजुर्ग हस्तियाँ दुनिया से जा चुकी है, हमारी उम्रों से अल्लाह ने बरकत छीन ली है, अमल की तौफीक छीन ली गई है, हम दीन से बहुत दूर है। अभी हमें अपनी 5 वक्ता नमाज पर, नेक अमाल पर, चेहरे पर सुन्नत सजाने, इस्लामी लिबास पहनने, माँ बाप के साथ उसने अखलाक से पेश आने पर ध्यान देना चाहिए। न ये कि इन सब बातों को बालाए ताक रखकर मुहक्किक मुदक्किक बनकर यहाँ वहाँ से इंटरनेट से दीन सीख कर बहसें करना और सहाबा किराम के फैसले करना, खुदा की कसम ये चीज से तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। पता नहीं जिंदगी वफा करे न करे, मेरा दोबारा आना हो या ना हो, दोबारा आना हो या ना हो, मेरा रब बेहतर जानता है। कल हम में से किसके नाम के आगे मरहूम लग जाए। खुदा के लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ, दीन का मामला बड़ा नाजुक मामला है। हम जैसे लोग, मुझ जैसा टुच्चा आदमी 18 साल मदरसे में 4 बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी इस मामले में जबान को दराज नहीं करता है। तुम क्या हो? तुम्हें सूरे फातिहा, तुम्हें 5 कलमे, अरे तुझे तो ईद की नमाज में बाबू में देखकर छोड़ना है कि मानना है, ये तेरा हाल है दीवाने पागल। और तू सहाबा किराम की बात कर रहा है। खुदा के लिए बेटे बात आ जा, कल बरोज़े महशर अल्लाह के हुजूर में कहूँगा मैंने अपना वक्त कुर्बान किया था, तबीयत खराब होने के बावजूद मैं स्टेज पर गया, नकाहत के बावजूद मैंने तकरीर की और अल्लाह तेरा मैंने पैगाम पहुँचाया था। अगर इसके बाद भी गुमराहों के साथ रहोगे, उठोगे बैठोगे खाओगे पियोगे, वहाबी देवबंदियों के यहाँ रिश्तेदारी करोगे, शियों के यहाँ रिश्तेदारी करोगे, या उनके किसी भी मातमी कामों में या उनकी तकारीफ में शिरकत करोगे, खुदा की कसम तुम्हें नबी की शफाअत नसीब नहीं होगी। अहले सुन्नत के सच्चे मजहब पर सख्ती से कायम रहो, यही सच्चा मजहब है, यही सवाद आज़म है, यही फिरक़े नाजिया है, और खुदा की कसम यही फिरक़े वाले जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। बातें तो बहुत है,